आपको सीधे लिए चलते हैं जेएनयू, जहां पे वहां के वाइस चांसलर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. To the students, so therefore the inquiry process is on. The inquiry process will be expedited and guilty will be punished. Sir, अभी तक आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया इस तरह से आपको बंधक बना हुआ है? आपको अभी यहाँ We are, see, this is a university run in a democratic manner. We value debate and discussion. That is the reason why we had several rounds of discussions with the students to convince that the university is sincerely working to locate Najib Ahmad. If all our efforts fail, if we continue to be confined like this, as I said at 2:30 we have the academic council meeting and we have to leave this venue and go to another venue, and if we are prevented from doing our duty, we will have no other option but take a suitable action. लेकिन सर अभी तक पुलिस I completely ban it out. No machines, no live. I'm just announcing it. If you're not there, please don't answer. He will come back to JNU as soon as possible through you. I would like to appeal to Najib Ahmad, wherever you are, please come back to JNU and continue your academic activities with no fear. In fact, a couple of days ago, we have also appealed to Najib through media as well as the website, requesting him to come back. As you know, we have been confined illegally in the administration building since yesterday from 2:30 p.m. We had a series of meetings with the students explaining the whole the number of steps that we have taken in search of the missing student. However, the students are very adamant. They are not letting us go out of this building. They said we have several demands and the administration has to concede those demands. One of the demands that they have made is that you should contact the police, which we have already done. We have written several letters to the police, and many of my officials are in regular touch with the top police officials to know the progress of the search for Najib Ahmad. The other demand students have made is that this entire incident should be investigated. The Chief Proctorial Office has already formed a committee, and the committee is investigating the whole incident. If anybody is found guilty, we have assured the agitating students that the guilty will be punished and the entire inquiry process will be expedited. Students also said we have to make an appeal to Najib. We have already made an appeal to Najib through the media and also the website. In spite of our best efforts to search for Najib Ahmad, the students are relentless and they are blaming that we are not doing enough, which is a complete lie. ये थे जेएनयू के वाइस चांसलर जगदीश कुमार, जो बता रहे थे कि हमने नजीब से अपील करी है वापस लौटने की। पुलिस अधिकारियों के लगातार संपर्क में है, पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर इस तरह से हमें बंदी बना के रखा जाएगा तो हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कल आधी रात से बवाल मचा हुआ है। वाइस चांसलर प्रॉक्टर सबको बंदी बनाया हुआ है। छात्रों ने नजीब के गायब होने से छात्र नाराज हैं। पिछले 5 दिनों से नजीब का कोई सुराग नहीं लगा है। रात से धरने पर बैठे हुए हैं और हालात जेएनयू के लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उस पर वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और छात्रों से अपील करी कि हमें अपना काम करने दें। हम पुलिस के लगातार संपर्क में बने हुए हैं, उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने नजीब से भी अपील की कि आप जहां भी हो नजीब, आप यूनिवर्सिटी लौट आएं और अपने एकेडमिक सेशन, एकेडमिक एक्टिविटीज को कैरी ऑन करें। वाइस चांसलर का यह भी कहना था कि छात्र उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनकी कई बार छात्र नेताओं के साथ मीटिंग हुई है, कई बार उन्होंने कोशिश करी है उनको समझाने की कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा काम कर रहा है, पर छात्र अपने बेकाबू हो गए हैं और छात्र किसी भी तरह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वाइस चांसलर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम मुझे गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाया हुआ है।
और किस तरह से जेएनयू में बवाल मचा, ये हम आपको अपने संवाददाता जगदीश ओम की रिपोर्ट दिखाते हैं। जेएनयू में 15 अक्टूबर को एमएससी के फर्स्ट ईयर के छात्र नसीम अहमद के गायब होने के बाद से जेएनयू का माहौल पूरी तरीके से अशांत हो चुका है। आज जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के स्टूडेंट्स ने इस समय बीसी ऑफिस के बाहर घेराव कर रखा है। एडमिन ब्लॉक को इस समय अपने पूरी तरीके से घेराव कर रखा है। यहाँ पे जुनूडा के जो लोग हैं वो भी इनके साथ यहाँ पे उनका साथ दे रहे हैं। इनका कहना है कि जेएनयू प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली पुलिस को अपनी तरफ से एक लेटर लिखे और एक एफआईआर कराने की मांग करे, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो जेएनयू प्रशासन के अंदर से गायब हुआ था कि प्रशासनिक जिम्मेदारी है, जिसके चलते उन्होंने आज यहाँ पे एडमिन ब्लॉक को पूरी तरीके से घेराव कर रखा है और ये लगातार डिमांड कर रहे हैं। करीबन 3 घंटे का समय हो गया है जब एडमिन ब्लॉक के अंदर वीसी, डीन ऑफ स्टूडेंट्स और प्रॉक्टर इस समय अंदर है और साथ में कुछ अन्य बड़े अधिकारी भी इस समय एडमिन ब्लॉक के अंदर है। जो उनके ऑफिस का अगर आपको दिखाएं तो बाहर खड़ो के इस समय जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के छात्र है वो नारेबाजी कर रहे हैं और पूरी तरीके से जो ऑफिस है उसको घेराव कर रखा है। इनकी डिमांड है कि अब जेएनयू प्रशासन बाहर निकले, बीसी सामने आए और दिल्ली पुलिस को एक कंप्लेंट करे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर लेके नसीम अहमद को जल्द से जल्द ढूंढे। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने नसीम अहमद को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से संज्ञान लिया है और उन्होंने जगह जगह पोस्टर्स लगाए और बोला है कि नसीम अहमद को ढूंढने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज।